اے معزز تھیوفلس، میں ان سب باتوں کو تمہارے لیے ٹھیک ٹھیک اور ترتیب وار لکھتا ہوں جو ہمارے درمیان وقوع پذیر ہوں، تاکہ تمہیں ہر ایک بات سے متعلق معلوم ہو جائے۔ جن ایام میں قیصر اگسطس روم کا حکمران تھا اور ہیرودیس اعظم یہودیہ کا بادشاہ تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ناصرت کی ایک کنواری حضرت مریم صدیقہ کے پاس بھیجا۔ اے مریم، خوف نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ آپ امید سے ہوں گی اور بیٹے کو جنم دیں گی۔ آپ اس کا نام عیسیٰ المسیح رکھنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کنواری ہوں۔ روح پاک آپ پر نازل ہوگا اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس کلمت اللہ کہلائے گا، اور اس کی سلطنت کی انتہا نہ ہوگی۔ حضرت مریم اپنے رشتہ دار حضرت الیشبا سے ملنے گئیں جو عمر رسید اور بانجھ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں امید بخشی۔ الیشبا، مریم، میری بہن مریم، آپ تمام عورتوں میں مبارک ہیں۔ آپ سے ہونے والا بچہ بھی مبارک ہے۔ جو ہی میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی، میرے پیٹ میں بچہ خوشی سے اچھل پڑا۔ میری جان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دہندہ خداوند کریم سے خوش ہے۔ اب سے لے کر آنے والی تمام پشتوں کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ ناصرت کے رہنے والے لوگوں، سنو کہ قیصر اگسطس کے حکم سے ان علاقوں میں جن کا وہ حکمران ہے، یعنی جلیل اور یہودیہ میں مردم شماری ہوگی، جس کی وجہ سے سب لوگ ان علاقوں میں جا کر اپنے اپنے نام لکھوائیں جن علاقوں میں ان کے آبا و اجداد پیدا ہوئے تھے۔ لہٰذا حضرت یوسف بھی اپنی منگیتر حضرت مریم صدیقہ کے ساتھ یہودیہ کے ایک گاؤں بیت اللحم میں اپنے ناموں کا اندراج کروانے گئے، لیکن بیت اللحم میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اور اگر ٹھہرنے کے لیے ان کو کوئی مقام ملا بھی تو وہ جانوروں کے باندھنے کی جگہ تھی۔ اب ملک کے اس علاقے میں کچھ چرواہے تھے جو رات کے وقت اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے۔ اچانک اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کا ان پر ظہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا نور ان کے چوگرد چمکا۔ آج حضرت داؤد کے شہر بیت الحم میں ایک نجات دہندہ کی ولادت ہوئی ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ المسیح ہے۔ یہ چرواہے اس معصوم بچے کو دیکھنے کے لیے کھرلی کی طرف روانہ ہوئے، اور نجات دہندہ کی ولادت سے متعلق خوشخبری سنانے والے سب سے پہلے لوگ ٹھہرے۔ ایک ہفتے بعد جب آپ کے ختنے کا وقت آیا تو آپ کا نام عیسیٰ المسیح رکھا گیا۔ حضرت یوسف اور حضرت مریم آپ کو یروشلم لے گئے تاکہ آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے۔ بیت المقدس میں ایک نہایت ہی بزرگ اور پرہیزگار شخص تھے جن کا نام شمعون تھا۔ روح پاک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس وقت تک موت کا مزہ نہ چکھیں گے جب تک کہ وہ مسیحا کا دیدار نہ کر لیں۔ اے رب العزت، اب اپنے خادم کو اپنے وعدے کے مطابق اطمینان سے رخصت فرما۔ کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ ناصرت میں اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح 12 سال کے ہو گئے تو حضرت یوسف اور حضرت مریم انہیں عید فصح منانے کے لیے یروشلم لے گئے، لیکن جب وہ واپس آنے لگے تو ان کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ المسیح ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ المسیح پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے واپس شہر آئے، اور 3 دن کے بعد انہوں نے آپ کو یہودی مذہبی علماء کے ساتھ بیٹھا پایا۔
یہ کس کا بچہ ہے جو ایسے سوال کرتا ہے؟ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم سمجھے کہیں کھو گیا ہے۔ اسے معاف فرمائیے۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ المسیح کی باتوں کو سنا وہ حیران ہوئے۔ بیٹا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم انتہائی پریشانی کے عالم میں آپ کو تلاش کرتے رہے۔ مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے رب کی مرضی کو بجا لانا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ المسیح ان کے ساتھ ناصرت آئے، اور وہ قد و قامت اور حکمت میں بڑھتے اور ذات الہی اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتے گئے۔ تبریوس قیصر کی حکومت کے 15ویں سال، جب پینتوس پلاطس یہودیہ کا گورنر تھا اور ہیرودیس جلیل کا حاکم تھا، حنا اور قیافہ اہل یہود کے سب سے بڑے امام تھے۔ ان دنوں حضرت یحییٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے اور وہ دریائے اردن کے کنارے تبلیغ کرنے لگے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرو اور پانی میں پاک غسل لو۔ لوگوں، اپنی بری روشوں سے باز آؤ اور پاک غسل لو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نبی کے صحیفے میں مرقوم ہے۔ بیابان میں پکارنے والا کہتا ہے، اپنے مالک کے لیے راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، ٹیڑھے راستے سیدھے کیے جائیں گے اور جو ناہموار ہے ہموار کیا جائے گا، اور ہر فرد بشر گناہوں سے نجات پائے گا۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں بتائیے، ہم کیا اے کریں؟ سانپ کے بچوں، آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں؟ ہماری مدد فرمائیے اور بتائیے کہ کون سی راہ پر چلیں۔ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ ایک کرتا ایسے شخص کو دے دے، جس کے پاس نہیں، جس کے پاس کھانا ہو وہ بانٹ کھائے۔ اے مالک، ہم تو محصول لینے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ جو مناسب ہے اس سے زیادہ نہ لیں۔ اور ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی تو بتائیں۔ کسی سے بھی زبردستی پیسہ نہ لیں، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، اپنی تنخواہ پر گزر بسر کریں۔ ہمیں بتائیے، کیا آپ المسیح ہیں؟ میں تمہیں پاک غسل دیتا ہوں، لیکن آنے والا مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔ میں تو ان کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ وہ تمہیں روح پاک اور آگ سے پاک غسل دیں گے۔ وہ انصاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ شریروں کو نیک لوگوں سے جدا کریں۔ اور روح پاک کبوتر کی صورت میں حضرت عیسیٰ المسیح پر آن ٹھہرا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا کلمہ ہے جس سے میں بہت خوش ہوں۔
जब हजरत ईसा मसीह ने अपनी तबलीग का आगाज किया तो उस वक्त आपकी उम्र 30 बरस थी। आप रूह पाक से मामूर होकर दरियाए उर्दन से वापस लौटे और रूह पाक की रहनुमाई में बयाबां की तरफ तशरीफ ले गए, जहां पर आप 40 दिन तक इब्लीस के जरिए आजमाए गए। इस दौरान आपने कुछ नहीं खाया। और इब्लीस ने हजरत ईसा मसीह से मुखातिब होकर कहा, अगर तू कलमतुल्लाह है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं। ये लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि कलामुल्लाह से जीता रहेगा। तब इब्लीस आपको एक बुलंद मकाम पर ले गया और लम्हा भर के लिए आपको दुनिया भर की सारी सल्तनतें दिखाईं। मैं ये सारा इख्तियार और दौलत तुम्हें दे दूंगा क्योंकि ये सब मेरे इख्तियार में है और मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। अगर तुम मुझे सजदा करो तो ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। लिखा है कि अपने रब ही को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आखिर में इब्लीस आपको शहर यरूशलेम ले गया और बैतुल मक़दिस यानी हैकल के सबसे ऊंचे किनारे पर ला खड़ा किया। अगर तू कलमतुल्लाह है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजेगा ताकि वो तुझे संभाल लें और अपने हाथों पर उठा लें ताकि तेरे पांव को पत्थरों से चोट ना लगे। कलामुल्लाह में लिखा है कि तू अपने रब की आजमाइश न कर। फिर यूं आप नासरत में वापस तशरीफ लाए जहां पर आपने परवरिश पाई थी। आदाब। आदाब। आप हस्ब दस्तूर हफ्ते के रोज जो सबत कहलाता है इबादत गाह में गए। और आपको हजरत इशाया के सहीफे से तिलावत करने के लिए दावत दी गई। यकीनन रूह पाक मेरे साथ है। उसने मुझे चुना है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई बख्शूं, जो जुल्म उठाते हैं उन्हें आजाद कराऊं और ऐलान करूं कि परवरदिगार की तरफ से नजात का वक्त आ गया है। ये सही कहता है। अल्लाह ताला का वो वादा जो आपने सुना पूरा हुआ। पेशन कोई पूरी हो गई? ये वादा तो अल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम ये कैसे जाने? इसमें शक नहीं कि तुम मुझसे कहोगे, ऐ हकीम अपने आप को अच्छा कर। तुम ये भी कहोगे कि तुमने जो कुछ कफरे नहूम में किया अपने शहर में भी करके दिखाओ। मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई भी नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। हजरत ईसा ने अपने आप को इन अल्फाज के जरिए मसीहा जाहिर किया कि अल्लाह ताला ने मसीह मऊद को लोगों की निजात के लिए भेजा। यहूदी उन्हें बतौर मसीह मऊद कबूल नहीं करते थे। उन्होंने आपको एक ऊंची जगह से गिराने की कोशिश की,
लेकिन आप हुजूम से तशरीफ ले गए और अपनी राह ली। और जलील के एक शहर कफ्र नहूम में तशरीफ लाए। अहले रोम का तसल्लुत सारे मुल्क पर था और लोग इस बात के मुश्ताक थे कि अल मसीह आकर उन्हें रोमी मजालिम और तसल्लुत से छुड़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमून, क्या मैं कश्ती में आऊं? क्यों नहीं मालिक। ये यहाँ से जाने तो नहीं लगे? हमसे बात कीजिए। हमसे बात कीजिए। मालिक, हमें सिखाएं। दो शख्स बैतुल मक़दस में नमाज अदा करने गए। एक आलिम दीन, दूसरा महसूल लेने वाला। आलिम दीन खड़ा होकर यूं दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि बाकी लोगों की तरह लालची, बददयानत और जिनाकार नहीं हूं, और तेरा शुक्र करता हूं कि मैं उस महसूल लेने वाले की तरह भी नहीं। हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, अपनी आमदन का 10वां हिस्सा भी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाला अल्लाह ताला के हुजूर अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ, बल्कि अपना सीना पीट पीट कर कहा, ऐ अल्लाह, मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह आलिम दीन नहीं बल्कि महसूल लेने वाला था जिसकी दुआ सुनी गई। अपने आप को बड़ा बनाने वाला छोटा किया जाएगा, और जो खाकसार है सर बुलंद होगा। अपनी कश्ती गहरे पानी में ले चलो, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर जाल डालो। ऐ मेरे मालिक, सारी रात हमने मेहनत की मगर एक मछली भी न पकड़ी। फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डालता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, कश्ती लाओ और हमारी मदद करो, जल्दी करो, हम तो पहले ही मसरूफ हैं। मालिक, आप तशरीफ ले जाइए, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। तुम घबराओ नहीं, अब तुम आदमगीर बनोगे। मेरे पास आओ और मेरा कलाम सुनो तो तुम जिंदा रहोगे। जब तक अल्लाह ताला मिल सकता है उसके तालिब रहो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। बुरा आदमी अपनी राह तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो परवरदिगार की तरफ रुजू लाए और रब्बुल इज्जत उस पर रहम करेगा, क्योंकि हमारा खुदा गफूर रहीम है। तुम खुशी के साथ बाहर जाओगे और सलामती से वापस लौटोगे। वो तशरीफ ला रहे हैं, देखिए आ गए हैं। हजरत ईसा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मालिक रहम के रहे, वो 12 बरस की है और बरदे वाली है। खुदारा मेरे साथ चलिए। यार, अफसोस है कि मालिक, तेरी बेटी मर गई है। मालिक को तकलीफ ना दो। तू परेशान ना हो, ईमान ला तो वो ठीक हो जाएगी।
तुम रो मत, ये सो रही है, मरी नहीं है। बेटी उठ जाग। इसे कुछ खाने को दो। जरा सुनो, किसी से इसका जिक्र मत करना। इसके बाद हजरत ईसा अल मसीह ने लावी कबीले के महसूल लेने वाले एक शख्स को देखा जिसका नाम मत्ती था, जो चुंगी पर महसूल लेने के लिए बैठा हुआ था। मेरे पीछे आ। और हजरत ईसा अल मसीह एक पहाड़ी पर दुआ करने के लिए तशरीफ ले गए और सारी रात वहां पर जिक्र इलाही में गुजार दी। सूरज तुलू होने पर आपने 12 पैरोकारों को चुना और उन्हें अपने सहाबा होने का शर्फ बख्शा। हजरत शमऊन, जिनका नाम आपने हजरत पतरस रखा, और उनके भाई हजरत इंद्रियास और हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना और हजरत फिलिपस और हजरत बर्तुलमाई और हजरत मत्ती और हजरत तूमा और हल्फई के साहबजादे हजरत याकूब और हजरत शमऊन जो जेलुतीस भी कहलाते हैं और हजरत याकूब के भाई हजरत यहूदा और यहूदा इस्करियोती, जिसने बाद में हजरत ईसा अल मसीह को गिरफ्तार भी करवाया। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि तुम ही जन्नती होगे। तुम भूखे हो तो मुबारक हो, क्योंकि आसूदा होगे। तुम रोते हो तो मुबारक हो, क्योंकि तुम हंसोगे। जब लोग बेइज्जत करें, तुमसे नफरत करें, तो तुम मुबारक हो। और जब मेरी वजह से तुम्हें बुरा कहें, उस वक्त तुम शादमान होना और खुशी मनाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। इनके बुजुर्गों ने भी अंबिया के साथ ऐसा ही किया था। 17, 18, 19, 20 मेरे पास यही है। क्या मतलब है तुम्हारा? अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम तसल्ली पा चुके।
ये अमीर नहीं बनना चाहता, ये कोई पागल ही होगा। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम रोगे और मातम करोगे। जब लोग तुम्हें नेक कहें तो अफसोस। उनके बुजुर्ग झूठे नबियों के मुतालिक यही कहते थे। तुमसे जो मेरी सुनते हो कहता हूं, दुश्मन से मोहब्बत करो, नफरत करने वालों से भला करो, लानत करने वालों के लिए बरकत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हें तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। और अगर कोई तुम्हारा कोट लेना चाहे तो उसे कमीज भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगता है उसे दो। अगर कोई तुम्हारा माल ले ले तो फिर वापसी के लिए ना कहो। वैसा ही करो जो चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। अगर तुम उनसे प्यार करते हो जो तुमसे करते हैं तो तुम्हें क्या बरकत मिलेगी? गुनाहगार भी तो ऐसा ही करते हैं। अगर तुम उनके साथ नेक हो जो तुम्हारे साथ हैं तो फिर तुम्हें कैसे बरकत मिले? क्योंकि गुनाहगार भी तो ऐसा ही करते हैं। वो उसे कैसे छू सकता है? वो उससे कैसे बात कर सकता है? घटिया कहीं का। नहीं, दुश्मनों से मोहब्बत और उनके साथ भला करो और वापसी की तवक्को के बगैर दो। इसमें तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। यूं तुम खुदा के चुने हुए कहलाओगे, क्योंकि वो बुरों और नाशुकरों पर भी मेहरबान है। रहम किया करो जैसा कि तुम्हारे रब ने रहम किया है। ईसा मसीह हमें बचाइए। ऐबजुई न करो, तुम्हारी भी नहीं होगी। इल्जाम न दो, तुम्हें भी इल्जाम नहीं दिया जाएगा। माफ किया करो, तुम्हें भी माफ किया जाएगा। मालिक, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाइए। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दूसरों को नापने वाले तुम भी नापे जाओगे। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अपनी भाई की आंख का तिनका देखने वाले, तू अपनी आंख की शैतीर को क्यों नहीं देखता? ए उस्ताद, हमें सिखाइए। मालिक, हमें आपकी जरूरत है। मुबारक है वो माँ जिससे आपकी विलादत हुई। इससे बढ़कर मुबारक वो हैं जो कलाम सुनते हैं और अमल करते हैं। मैं इस आदमी को जानना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये मसीहा है? एक फरीसी ने हजरत ईसा अल मसीह को रात के खाने पर दावत दी। आप तशरीफ ले गए और उसके साथ खाना खाने बैठे। बच्चों, तुम यहाँ से चले जाओ। सुना है तुमने? जाओ। शरारतें करते हैं लेकिन अच्छे बच्चे हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे मालूम नहीं। ये कर क्या रही है? अगर ये शख्स वाकई नबी होता तो ये जान लेता कि ये खातून जो इसे छू रही है वो कौन है। तो ये जानता कि ये कैसी गुनाहगार है। शमून, मैं जानता हूं ये औरत कौन है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। दो आदमियों ने एक शख्स से कर्ज लिया।
ایک نے 500 اور دوسرے نے صرف 50 لیے. دونوں میں سے ایک بھی واپس نہیں کر پایا. اس نے دونوں کو معاف کر دیا. کون زیادہ محبت دکھائے گا؟ وہ شخص جس کا زیادہ قرض معاف ہوا. تم ٹھیک کہتے ہو. تو پھر اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تمہارے گھر آیا، تم نے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، لیکن اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے دھوئے اور اپنے بالوں سے صاف کیے. تو نے تو نہ چوما، مگر یہ عورت جب سے آئی ہے میرے پاؤں کو چوم رہی ہے. تو نے میرے سر پر تیل نہ ڈالا، لیکن اس نے میرے پاؤں کو معطر کر دیا. میں تم سے کہتا ہوں، اس کی یہ محبت ثبوت ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہوئے. جس نے تھوڑی معافی پائی، محبت بھی تھوڑی کرتا ہے. تمہارے سارے گناہ معاف ہوئے. کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تمہارے ایمان نے تمہیں بچا لیا. سلامتی سے جاؤ. اور حضرت عیسیٰ المسیح یہ خوشخبری دیتے رہے کہ بخشش کا دروازہ کھلنے والا ہے. آپ کے 12 صحابی آپ کے ساتھ تھے، اور اسی طرح کچھ خواتین بھی جنہوں نے بدرواہ سے شفا پالی تھی. حضرت مریم جو کہ مجدل کی رہنے والی تھی، حضرت یوحنا جن کے شوہر کا نام خوذہ تھا اور وہ ہیرودیس کے محل میں کام کرتے تھے، اور حضرت سوسنہ بھی ان کے ساتھ تھی. لیکن ہیرودیس نے جو جلیل کا حاکم تھا حضرت یحییٰ کو قید خانے میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے ہیرودیس کو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ ناجائز شادی کرنے پر ملامت کی تھی. تو پھر ہم نائن شہر کے دروازے پر تھے تو وہاں سے ایک جنازہ آ رہا تھا. مردہ شخص ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا. حضرت عیسیٰ المسیح رحم سے بھر گئے. چنانچہ آپ نے میت کو چھو کر فرمایا، اے جوان اٹھ کھڑا ہو. وہ اٹھا اور حضرت عیسیٰ المسیح نے اسے ماں کے حوالے کیا. ان سے پوچھو کیا آپ وہی ہیں جو آنے والے تھے، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ مالک، مالک، حضرت یحییٰ نے دریافت کیا ہے کہ آپ وہی ہیں جو آنے والے تھے، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ تم نے جو کچھ دیکھا ہے یحییٰ کو بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو شک نہیں کرتے. مجھے اٹھا لیجئے نا. اوپر آ جا، اب دیکھ سکتے ہو. میں حضرت عیسیٰ کو دیکھ سکتا ہوں. ایک کسان بیج بونے کے لیے نکلا. جب وہ بو رہا تھا تو کچھ راہ کے کنارے گرا اور پاؤں تلے آیا، اور پرندوں نے اسے چگ لیا. اور کچھ پتھریلی زمین میں گرا. جب وہ بیج اگا تو سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو پوری خوراک نہ ملی. اور کچھ بیج خاردار جھاڑیوں میں گرا. وہ جھاڑیاں بھی اس کے ساتھ بڑھیں اور ان جھاڑیوں نے اسے دبا لیا. کچھ بیج اچھی زمین میں گرا، اور جب اس زمین میں یہ بیج اگا تو 100 گنا پھل لایا. مالک، لوگوں کے ہجوم میں آپ تماثیل میں کیوں بات کرتے ہیں؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بھیدوں کا علم بخشا گیا ہے. دوسروں سے تماثیل میں کلام کرتا ہوں تاکہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں.
और सुनते हुए भी न समझें। इस तमसील के माने ये हैं, बीज अल्लाह का कलाम है। राह के किनारे वाला बीज वो लोग हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन इब्लीस उनसे अल्लाह का कलाम छीन लेता है ताकि वो ईमान लाकर निजात ना पाएं। पथरीली जमीन वाला बीज वो लोग हैं जो अल्लाह की बातों को सुनते और कबूल करते हैं, उनकी जड़ें नहीं होती। ये आर्जी ईमान होता है, और जब वो आजमाइश में पड़ते हैं तो वो फिर जाते हैं। झाड़ियों में गिरने वाला बीज वो लोग हैं जो सुनते हैं, लेकिन वो इस दुनिया की फिक्रों में ऐसे फंस जाते हैं कि वो दब कर रह जाते हैं। उनके लिए कलामुल्लाह बेफायदा है। और वो बीज जो अच्छी जमीन में गिरा, उससे मुराद वो लोग हैं जो कलामुल्लाह को सुनते और कबूल करते हैं और अपनी जिंदगी उसके मुताबिक बनाते हैं। चिराग जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखते और ना चारपाई के नीचे, उसे चिरागदान पर रखते हैं ताकि अंदर आने वालों को रोशनी मिले। जो पोशीदा है जाहिर किया जाएगा और जो कुछ ढका हुआ है अयां किया जाएगा। तुम मोहतात रहो कि कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो कुछ उसके पास है। मालिक, आपकी वालिदा और अजीज बाहर मुंतजिर हैं। मेरी माँ और अजीज वो हैं जो कलामुल्लाह सुनते हैं और अमल करते हैं। एक दिन हजरत ईसा मसीह अपने साहबा इकराम के साथ कश्ती में थे और उनसे मुखातिब होते हुए फरमाया, आओ अब हम झील के उस पार चलें। जब वो जा रहे थे तो हजरत ईसा मसीह कश्ती में सो गए। मालिक, मालिक, ईसा मसीह, हम मौत के मुंह में हैं। लहरें हम पर चढ़ाई हैं। मालिक, हमें बचा लीजिए। अब हम बच जाएंगे। आपका ईमान कहाँ है? फिर वो ग्रासीनियों के इलाके में आए जो जलील की झील के पार है। ईसा, ऐ कलमतुल्लाह, मुझसे क्या चाहते हैं? इल्तजा है, मुझे सजा न दें। तुम्हारा नाम क्या है? लश्कर, आपसे मिन्नत है, हमें
अजाब में न डाले, उन सूरों के रेवड़ में भेज दे। अरे वापस आओ, रुक जाओ, रुक जाओ। और ये बदरवाह उस शख्स में से वापस निकलकर आओ। सुअरों में दाखिल हो गई। ए जादूगर, जा यहां से, हमें छोड़ दे। इस मकाम से चला जा, हमें छोड़, यहां से चला जा। मालिक, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे साथ जाने दें। तू अपने घर जा और बता कि खुदा ने कैसे नवाजा। हजरत ईसा अल मसीह और उनके सहाबा इकराम अपने आप को हुजूम से अलग करके बैत सैदा की तरफ रवाना हो गए। लेकिन हुजूम ये सुन के उनके पीछे हो लिया। बाद में दोपहर के वक्त हजरत पतरस फरमाने लगे, मेरे मालिक, इन लोगों को भेज दें ताकि ये गांव की तरफ जाएं और अपने खाने पीने और रहने सहने का इंतजाम करें, क्योंकि यहाँ तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। तुम ही इनको कुछ खाने पीने को दो। हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। रब्बे कायनात, तू जो बादशाह है, तू बरकत वाला है, जो जमीन से रिज्क पैदा करता है। ये मोजिज़ा है। ये नाकाबिले यकीन है। लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं? कुछ कहते हैं कि आप हजरत याहिया हैं और कुछ हजरत इलियास कहते हैं, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि आप पहले अंबिया में से एक हैं जो जिंदा हो गए हैं। तुम क्या कहते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? आप तो कलिमतुल्लाह हैं। ये बात किसी से न कहना। जरूर है कि मसीह मौऊद दुख उठाए, मसलूब किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। How clearly
Each day an answer seems to the following day. Each night repeats it to the next. तुम में से कौन मेरा पैरोकार होगा? मालिक, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन पहले मुझे जाने दें कि घर वालों को अल्लाह हाफिज कह आया हूं। जो कोई भी हल पर हाथ रखकर पीछे की तरफ देखता है वो जन्नत के लायक नहीं है। मेरे पीछे आने वाला अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चले। अपनी जान बचाने वाला उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। इंसान सारी दुनिया हासिल करे मगर जहन्नम में जाए तो क्या फायदा होगा? अगर कोई मुझसे और मेरी तालीमात से शर्माएगा तो फिर जब मैं भी रब की तरफ से फरिश्तों के साथ आऊंगा तो फिर मैं भी ऐसे लोगों से शर्माऊंगा। मैं कहता हूं, आप में से कुछ लोग जब तक अल्लाह की बादशाहत न देखें वो मरेंगे नहीं। From its फिर हजरत ईसा अल मसीह, हजरत पतरस, हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना को पहाड़ पर दुआ करने ले गए। जब आप दुआ कर रहे थे तो आपका चेहरा चमक उठा और पोशाक सफेद हो गई। अचानक दो बुजुर्ग आपसे महवे गुफ्तगू हुए जो कि हजरत मूसा और हजरत इलियास थे। वो आसमान से जाहिर हुए थे। आप अल्लाह ताला के मंसूबे को पूरा करेंगे। आप यरूशलेम में इंतकाल करेंगे। वहां से रुखसत होते हुए हजरत पतरस आपसे मुखातिब हुए। मालिक, खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ हैं। यहाँ 3 खैमे बनाए, एक आपके लिए, हजरत पतरस के कलाम एक हजरत करने के मूसा, बाद एक बड़े गहरे बादल ने उन्हें छुपा एक हजरत लिया, इलियास के लिए। जिससे आपके साहबा घबरा गए और बादलों पर से एक आवाज आई, ये मेरा कलमा है जिसे मैंने भेजा है, इसकी सुनो। मालिक, ए मेरे मालिक, मेरे बेटे के लिए कुछ करे। मेहरबानी से मेरी मदद फरमाइए। वो मेरा एक ही बेटा है। आपके साहब से दरखास्त की कि वो इससे बदरू निकाले, मगर कुछ न कर सके। ऐ कम एतकाद और कजरो लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहकर बर्दाश्त करूंगा? बेटे को यहां लाओ। Yes,
उसका चेहरा भी ठीक हो गया है। कैसी अच्छी बात है। दुआ सिखाइए जैसा कि हजरत याहिया ने सिखाई थी। जब दुआ करो तो यूं कहो, ऐ परवरदिगार तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी आसमानी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे गुनाहों को माफ फरमा जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, ढूंढने वाला पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खुलता है। क्या तुम में से कोई ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को मछली मांगने पर सांप देगा और या अंडा मांगने पर बिच्छू देगा? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो फिर परवरदिगार अपने मांगने वालों को रूह पाक क्यों नहीं देगा? मैं तुमसे कहता हूं, तुम इस बात की फिक्र न करो कि क्या खाओगे, और ना ही अपने बदन की कि क्या पहनोगे, क्योंकि जान खुराक से और बदन पोशाक से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कौवों को देखो, न वो बोते और न काटते हैं और न ही उनका कोई गोदाम में है, तो फिर भी राज़िक उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो इन परिंदों से ज्यादा है। तुम में से कौन फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक पल का भी इजाफा कर सकता है? अगर तुमसे इतना भी नहीं होता तो फिर क्यों फिक्रमंद होते हो? इन पौधों को देखो कैसे बढ़ते हैं, वो कोई मेहनत नहीं करते। हजरत सुलेमान अपनी तमाम शान और शौकत के बावजूद इनकी तरह मुलब्बस नहीं थे। अगर अल्लाह घास को जो कल आग में जाएगी ऐसी खूबसूरत पोशाक पहनाता है, तो फिर वो तुम्हें क्यों अच्छी पोशाक न पहनाएगा? ऐ कम ईमान वालो, मालिक हमारा ईमान बढ़ाइए। अगर तुम में रत्ती बराबर भी ईमान होता और तुम कहते इस दरख्त से कि जड़ से उखड़ और जा समंदर में जा पड़, तो वो तुम्हारी बात मानता। गुनाह करने के लिए आजमाइशें जरूर आएंगी, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से आई। किसी को गुनाह की तरफ माइल करने वाले के लिए अच्छा होता कि उसके गले में भारी पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाता ताकि वो डूब जाता। अल्लाह की बादशाही कैसी है? ये ऐसी है कि एक शख्स छोटा सा बीज लेकर खेत में बोता है, फिर ये उगता और दरख्त बनता है और उसकी डालियों पर परिंदे बसेरा करते हैं। पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। आप गुनाहगार और महसूल लेने वालों के साथ क्यों खाते पीते हैं? तंदुरुस्तों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको जो बीमार हैं। मैं इसलिए नहीं आया कि सिर्फ रास्तबाजों को बुलाऊं, बल्कि इसलिए कि गुनाहगार तौबा करें।
اے मालिक बादशाह क्या है? क्या कोई और भी बात है? डरो मत, अल्लाह ताला को ये पसंद है कि तुम अपना सारा माल बेचकर पैसा गुरबा में बांट दो और ऐसे बटवे लो जो पुराने नहीं होते, और तुम अपना माल आसमान पर जमा करो जहां वो कभी खराब नहीं होता। वहां चोर चोरी नहीं कर सकता, न ही कीड़ा खराब करेगा। जहां तुम्हारा माल है वहीं तुम्हारा दिल होगा। ऐ खातून, तुम अपनी बीमारी से शिफा पा गई हो। देखो देखो वो ठीक हो गई है। ये मुर्जा है। देखो वो ठीक हो गई है। आओ देखो। अल्हम्दुलिल्लाह 18 बरस से। मालिक अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। 6 दिन हैं जिनमें हम काम करते हैं। शफा के लिए तुम उन दिनों में से किसी दिन आओ, लेकिन हफ्ते के दिन नहीं। ऐ मुनाफिको, क्या तुम में से कोई हफ्ते के दिन अपने ढोर डंगरों को पानी पिलाने के लिए नहीं लेकर जाएगा? ये औरत औलाद इब्राहिम है और 18 बरस से शैतान ने इसे जकड़ रखा था। क्या हफ्ते के दिन इसका आजाद हो जाना मुनासिब नहीं है? नेक उस्ताद, मुझे बताइए कि जन्नत में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो सिर्फ अल्लाह ही की जात है। मूसा की शरीयत से वाकिफ हो? तुम जिना न करना, न खून करना और न ही किसी पर इल्जाम लगाना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। ये सब कुछ तो मैं बचपन ही से करता चला आ रहा हूं। तो भी तुझे एक और काम करना है। अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे, फिर तुम्हें बहिश्ती खजाना मिलेगा। तब आकर मेरे पीछे हो लेना। लेकिन हम तो ताजिर हैं, हम दौलतमंद हैं। किसी का जन्नत में दाखिल होना कितना मुश्किल काम है। एक अमीर आदमी का जन्नत में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना कि ऊंट का सुई के नाके से गुजरना। फिर कौन नजात पाएगा? जो इंसान के लिए नामुमकिन है, अल्लाह ताला के लिए मुमकिन है। फिर बताइए ये सब कुछ कब होगा? ये अल्लाह की बादशाही? अल्लाह की बादशाही ऐसी नहीं जो देखी जा सके। कोई भी नहीं कहेगा कि देखिए वो यहां है या वहां है, क्योंकि वो तुम्हारे दिलों में आ चुकी है। वो वक्त आएगा जब तुम मसीहा की आमद की आरजू करोगे, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगे। जैसे आसमान पर बिजली चमकती हुई एक समत से दूसरी समत चली जाती है, मसीहा की आमद भी ऐसी ही होगी। लेकिन जरूर है कि पहले वो दुख उठाए और उसके हमअसर लोग उसे रद्द कर दें। मुबारक हैं वो आंखें जो उन चीजों को देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि बहुत से अंबिया और बादशाहों ने आरजू की मगर न देख पाए और न सुन पाए जो तुम सुनते हो। हमें क्या करना चाहिए? तौरात क्या कहती है, तुम कैसे समझते हो? अल्लाह ताला से मोहब्बत कर, पूरे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अक्ल से, और अपने पड़ोसी को अजीज जान। तूने ठीक कहा, यही कर और जीता रहे। मेरा पड़ोसी कौन है? सिपाही तो नहीं। कैसर के बारे में क्या ख्याल है? एक शख्स यरूशलेम से अरीहा की तरफ जा रहा था कि डाकू ने उसे घेर लिया, उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया और छोड़कर चले गए। ऐसा हुआ कि एक यहूदी इमाम का उस राह से गुजर हुआ
اور جب اس نے اس زخمی شخص کو دیکھا تو وہ دوسری راہ سے چل دیا۔ اسی طرح ایک اور مذہبی شخص کا ادھر سے گزر ہوا اور زخمی کے پاس جا کر اس نے بھی اسے دیکھا اور اپنی راہ لی۔ لیکن جب ایک حقیر سامری کا زخمی شخص کے پاس سے گزر ہوا تو اس شخص کو دیکھ کر اسے بہت ترس آیا۔ سامری نے اس شخص کے زخموں پر مرہم لگائی اور پٹی باندھی اور اپنی سواری پر بٹھا کر شفا خانہ لے گیا۔ اگلے دن وہ پھر گیا اور طبیب کو اس کا خرچ ادا کیا اور کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو جو بھی اس پر خرچہ ہوگا میں ادا کروں گا۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے اس شخص کے ساتھ ان تینوں میں سے کس نے پڑوسیوں والا سلوک کیا؟ جو اس پر مہربان ہوا۔ تم بھی یوں ہی کرو۔ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ جنت ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اللہ کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہیں کرتا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان بچوں کو قبول کرنے والا گویا مجھے قبول کرتا ہے، مجھے قبول کرنا میرے بھیجنے والے کو قبول کرنا ہے۔ تم میں جو سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ المسیح یہاں سے گزر رہے ہیں۔ المسیح، مسیحا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم فرمائیے۔ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میں پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو، تیرے ایمان نے تجھے شفا بخشی۔ میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح یروشلم کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ہر جگہ آپ کا ایک بڑی بھیڑ سے واسطہ پڑا۔ لوگ آپ سے کہتے تھے کہ ہمیں راہ نجات دکھائیں اور ہمیں جنت الفردوس سے متعلق مزید بتائیں۔ یہ ضرور کوئی نبی ہے۔ مالک مجھے بچا لیجئے۔ مالک ہمیں بچا لے۔ الحمدللہ۔ مالک ہمیں صراط مستقیم دکھائیے۔ لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کو خداوند کے طور پر تسلیم کرنے لگے۔ اریحا میں ایک محصول لینے والے شخص زکائی کو آپ کے دیدار کا اتنا شوق تھا کہ ایک درخت پر چڑھ گیا تاکہ حضرت عیسیٰ المسیح کا دیدار کر سکے۔ زکائی نیچے آؤ، آج میں تمہارا ہی مہمان ہوں۔ میرے گھر؟ اس کے گھر میں کون جانا پسند کرے گا؟ زکائی حضرت عیسیٰ المسیح کو کیسے جانتا ہے؟ سنیے، میں اپنے مال کا آدھا حصہ غربا کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق لے لیا تو 4 گنا واپس دیتا ہوں۔
میں نہیں سمجھتا کہ محصول لینے والا شخص ایسے واپس لوٹا ہے، ناممکن ہے۔ آج زکائی کے گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یہ شخص بھی اولاد ابراہیم میں سے ہے اور مسیحا گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ سنو، ہم یروشلم جا رہے ہیں جہاں مسیح موعود کے متعلق تمام پیشن گوئیاں پوری ہوں گی۔ وہ غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا اور اس کا مذاق بنے گا، لوگ اس کا تمسخر اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے، اسے قتل کریں گے، لیکن تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں مار دیا جائے گا یروشلم کی راہ لی۔ حضرت عیسیٰ المسیح جب گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگ خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ بادشاہ ہیں۔ اپنے صحابہ سے کہیے کہ خاموش رہیں۔ میں بتاؤں، اگر یہ خاموش ہو گئے تو پھر پتھر چلانا شروع کر دیں گے۔ آسمان پر خدا تعالیٰ کی تمجید ہو۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح شہر یروشلم کے قریب تشریف لائے تو اس پر نگاہ کر کے رونے لگے۔ اے یروشلم، کاش کہ تو سلامتی کی باتوں کو جانتا ہوتا، مگر تو نے ایسا نہ کیا۔ وہ دن آئیں گے جب تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تجھے تنگ کریں گے۔ انہی فصیلوں کے اندر وہ تباہ کر ڈالیں گے تجھے اور تیرے بچوں کو، اور اس طرح وہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس لیے کہ تو نے اپنی نجات کے وقت کو نہیں پہچانا۔ یروشلم میں بیت المقدس جائے عبادت کے بجائے تجارت کا مرکز بن گیا تھا۔ پانچ، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25۔ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی غار بنا دیا۔ وہ میرے جانوروں کی طرف آ رہا ہے، اسے روکو، اسے روکو۔ سپاہیوں کو بلاؤ، سپاہیوں کو بلاؤ۔ کچھ سیاسی اور مذہبی لوگوں کی وجہ سے مخالفت بڑھنے لگی، کیونکہ لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کو بادشاہ کہہ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اسے بادشاہ مان لیا ہے۔ بادشاہ؟ بھکاریوں اور ڈاکوؤں کا بادشاہ؟ ایسے بہت دیکھے ہیں، دعوے کرتے اور چلے جاتے ہیں۔
लोग भूल जाते हैं। अंधे मत बनो, उसके पैरोकार बढ़ रहे हैं, लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। उसे बादशाह समझते हैं। मैं आपको खबरदार करता हूं कि अगर ये शख्स झगड़े फसाद का सबब हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। शायद वो ठीक है, अब जलीली का मुकाबला करना है। हजरत ईसा मसीह रोज बरोज फरीसियों और फुकाहा के बरखिलाफ बोलते रहे। आप फरमाते थे कि वो शरीयत की तालीम तो देते हैं मगर खुद उस पर अमल नहीं करते। हजरत ईसा मसीह ने बैतुल मक़दिस में एक बेवा औरत को देखा ये तो बहुत थोड़ा जो है। वहां हदिये में सिर्फ 2 पैसे डाल रही थी। क्या ये ज्यादा नहीं दे सकती? मैं बताता हूं कि इस बेवा ने सबसे ज्यादा नजराना दिया है। बाकी लोगों ने अपनी दौलत में से बचा हुआ नजराने में दे दिया, लेकिन इस गरीब बेवा के पास जिंदा रहने के लिए जितना भी था वो सारे का सारा नजराना दे दिया। हमें बता, ये बातें कहने का तुम्हें क्या हक है? किसने तुम्हें इख्तियार दिया? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम ये बताओ कि यहया को पाक गुस्ल देने का इख्तियार किसने दिया था? हम क्या कहें? अगर कहें अल्लाह की तरफ से तो वो कहेगा तुमने फिर याह्या को क्यों ना माना? अगर कहें कि इंसान की तरफ से है तो लोग पत्थर बरसाएंगे, क्योंकि वो हजरत याह्या को नबी समझते थे। हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। मैं भी तुम्हें यह नहीं बताता कि मैं किस इख्तियार से ये काम करता हूं। एक दफा एक शख्स ने अंगूरों का एक बाग लगाया और उसे ठेके पर दे दिया, फिर अरसा दराज के लिए चला गया। फिर जब अंगूरों को जमा करने का वक्त आया तो उसने नौकर को भेजा कि बागबान से मालिक का हिस्सा ले आए, लेकिन ठेकेदारों ने नौकर को पीट कर वापस लौटा दिया। फिर उसने दूसरा नौकर भेजा, लेकिन ठेकेदारों ने उसे भी बुरी तरह पीटा, धमकाया और खाली हाथ वापस लौटा दिया। तब उसने तीसरा नौकर भेजा, लेकिन ठेकेदारों ने उस पर भी जुल्म ढाया। फिर मालिक ने कहा, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना अजीज फर्जंद भेजूंगा, शायद वो लोग इसका लिहाज करें। उसे आता देखकर ठेकेदार एक दूसरे से कहने लगे, ये तो मालिक का बेटा है, आओ इसे मार डालें, जायदाद हमारी हो जाएगी। मालिक हमें और बताइए। उन्होंने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मार डाला। अब उस बाग का मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या सलूक करेगा? वो आकर उन आदमियों को मारेगा और अपना बाग दूसरे ठेकेदारों को दे देगा। तो फिर इस कलाम के क्या माने हैं? जिस पत्थर को मेमारों ने बेकार जानकर रद्द कर दिया, वही पत्थर संग बुनियाद ठहरा। जो उस पत्थर पर गिरेगा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर वो पत्थर किसी पर भी गिर पड़ा तो वो पत्थर उसे पीस डालेगा। उस्ताद, हम जानते हैं कि जो कुछ आप सिखाते हैं दुरुस्त है। आपका मकसद इंसान को खुश करना नहीं है और खुदा की मर्जी को सही सिखाते हैं। बताइए कि क्या यह हमारी शरीयत में रवा है कि रूमी हुक्मरान को जजिया अदा करें? मालिक ये आपको फंसाना चाहता है। मुझे चांदी का एक सिक्का दिखाइए। इस पर किसका नाम और तस्वीर है? तो फिर कैसर को दो, वो जो कैसर का है, और जो अल्लाह का है वो अल्लाह ताला को दो। इससे मुतालिक आपका क्या जवाब है? अब अहले यहूद की छुटकारे वाली ईद करीब थी। इस ईद के दौरान फसा का बकरा कुर्बान किया जाता था। चुनाचे हजरत ईसा मसीह ने हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना को अपने आगे भेजा कि वो जाकर खाना तैयार करें।
मैं चाहता था कि दुख उठाने से पेशतर ये खाना तुम्हारे साथ खाऊं। मैं ये कहता हूं, ये खाना फिर मैं जन्नतुल फिरदौस में तुम्हारे साथ खाऊंगा। ऐ परवरदिगार, तू बरकतों वाला है, कायनात का बादशाह है, जो अंगूर की बेल से फल पैदा करता है। ये लो और इसे एक दूसरे के साथ बांट लो। मैं तुम्हें बताता हूं कि अब मैं अंगूर का ये मशरूब जन्नत में तुम्हारे साथ पीऊंगा। ऐ रब्बे कायनात, तू जो बादशाह है, तू बरकत वाला है, जो जमीन से रिज्क पैदा करता है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में इसी तरह किया करो। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारी खातिर बहाया जाता है। लेकिन याद रखो, मुझे गिरफ्तार करवाने वाला मेरे साथ इसी मेज पर है। मसीह मऊद को तो मरना ही है जो अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन उसके पकड़वाने वाले पर अफसोस है। क्या मैं हूँ? मालिक से पूछिए कि वो कौन है। ऐ मेरे मालिक, वो कौन है? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। कौन है जो ऐसा करेगा? ऐसा नहीं करूंगा। वो शख्स मैं कोई है। तुम में जो सबसे बड़ा है वो छोटा बने, और कायद के लिए लाजिम है कि वो खादिम की तरह हो, क्योंकि बड़ा वो है जो बैठकर खाता है या वो जो खिदमत करता है। यकीनन वो जो बैठता है, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खादिम की हैसियत से हूं। मेरी सारी आजमाइशों में तुम मेरे साथ बराबर के शरीक रहे हो, और जिस तरह मेरे रब ने जो मुझे अदालत करने का इख्तियार बख्शा है, वही इख्तियार मैं तुम्हें दूंगा। जन्नतुल फिरदौस में तुम मेरे साथ खाओ पियोगे, और मेरे साथ बनी इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। फिर तो कोई गद्दार नहीं है। शमून सुनो, शैतान ने बड़ी कोशिश की कि तुम सबको गेहूं की तरह फटके ताकि तुम सबके ईमान का इम्तिहान हो, लेकिन मैंने ये दुआ की कि तुम्हारा ईमान कायम रहे और तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो अपने भाइयों को मजबूत करो। मालिक, मैं तो आपके साथ कैद खाने जाने और मरने के लिए तैयार हूं। पतरस, मैं तुम्हें बताता हूं कि आज मुल्क के बांग देने तक तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। जब मैंने तुमको बगैर बटवे के बाहर भेजा तो क्या कोई कमी हुई? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब जिसके पास बटवा या थैला है ले ले, और जिस किसी के पास तलवार नहीं है वो तलवार खरीद ले। मैं बताता हूं, कलाम में लिखा हुआ है कि उसका खताकारों के साथ शुमार हुआ, और जरूर है कि मेरी बाबत लिखा पूरा हो। देखिए, यहां 2 तलवारें हैं मालिक। ये काफी हैं। यहूदी मजहबी बुजुर्गों की मजलिस ये फैसला करने के लिए बैठी कि ईसा मसीह से कैसे जान छुड़ाई जाए। तब यहूदा में जो इस्करियोती भी कहलाता था इब्लीस समा गया। ये 12 सहाबा में से एक था। यहूदा ने मजहबी बुजुर्गों के साथ मिलकर हजरत ईसा मसीह के पकड़वाने का मंसूबा बनाया। हजरत ईसा मसीह यरूशलेम से कोहे जैतून की तरफ दुआ करने के लिए रवाना हुए।
दुआ करो ताकि किसी आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा इस्करियोती ने चांदी के सिर्फ 30 सिक्कों के एवज हजरत ईसा मसीह को बेच डाला। हजरत ईसा मसीह जानते थे कि मेरी मौत का वक्त आ गया है, ताकि मेरी मौत के वसीले से गुनाहगार इंसान की जिंदगी हलाकत से बच जाए। चुनाचे आपने दुआ की। परवरदिगार, अगर ये तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मुझसे हटा ले। फिर भी मैं ये कहता हूं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसी दौरान आसमान से एक फरिश्ता आपको तक़वियत देने के लिए आया। उस वक्त आपका पसीना गोया के खून की बूंदें बन बनकर जमीन पर टपक रहा था। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा, तुम इस बोसे के जरिए मुझे पकड़वाओगे? मालिक, क्या हम तलवार चलाएं? इसे गिरफ्तार कर लो। बहुत हो चुका। मौजज़ा। तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह गिरफ्तार करने आए हो? बैतुल मक़दस में जब मैं तुम्हारे साथ था उस वक्त तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तुम्हारे काम करने का वक्त यही है, क्योंकि ये तारीकी का राज है। गिरफ्तार करो। ख्याल रखो। सिपाही आपको किले के सहन में ले गए और यहूदियों का बादशाह कहते हुए आपका तमस्खुर उड़ाने लगे। ये शाही चौगा है। हमें बता कि अब क्या होगा। अरे बादशाह सलामत, क्या तुम हमें बचाओगे? ये आदमी भी ईसा अल मसीह के साथ था। बीबी, मैं तो उसे नहीं जानता। मैंने इन्हें इकट्ठे देखा। आपका अदना खादिम। अब बताओ कि बादशाह बनना कैसा लगता है? तुम भी तो उनमें से एक हो। लेकिन मैं नहीं हूं।
یہ آدمی بھی عیسیٰ المسیح کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ بھی جلیلی لگتا ہے۔ چلے جاؤ، مجھے معلوم نہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح نے پیچھے مڑ کر حضرت پطرس پر نگاہ کی تو حضرت پطرس کو یاد آیا کہ حضرت عیسیٰ المسیح نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ آج اس وقت تک مرغ بانگ نہیں دے گا جب تک تم میرا 3 بار انکار نہ کر لو۔ اے میرے مالک، میں نے آپ کے ساتھ جینے اور مرنے کا عہد کیا تھا، لیکن میں نے انکار کیا کہ آپ کو جانتا ہوں۔ اے اللہ، جب ہمارے باپ دادا تیرے خلاف چلے تو تو نے انہیں معاف فرمایا۔ اے اللہ، تو ان سے ناراض ہوا مگر انہیں ہلاک نہیں کیا۔ تو نے اپنی محبت، عہد اور وفاداری کی خاطر انہیں معاف فرمایا۔ بتا کس نے مارا؟ نبوت کرو، اب کون مارے گا؟ بس کرو، کہتا ہوں بس کرو، اسے مجلس میں لے کر آؤ، چلو۔ بڑے یہودی مذہبی رہنماؤں کی مجلس میں حضرت عیسیٰ المسیح سے سوالات ہونے لگے۔ ہمیں بتا کہ کیا مسیحا تو ہی ہے؟ اگر میں بتاؤں تو تم میرا یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں سوال پوچھوں تو تم میرا جواب نہیں دو گے۔ اب سے مسیح موعود قادر مطلق خدا کے داہنے ہاتھ کی طرف بیٹھے گا۔ تو کیا تم مسیح موعود ہو؟ ہاں، میں مسیحا ہوں۔ ہمیں مزید گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو یہ کہنے کا اسے کون اختیار دیتا ہے؟ سن لیا ہوگا، ہمیں مزید گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ایسا کہتے ہوئے ہم نے خود سنا ہے۔ ہم اس کو پلاطس کے پاس لے جائیں گے۔ ہاں ہاں، لے جاؤ اسے۔ چلو۔ اور وہ اسے پیلاطس کے پاس لے گئے جو رومی حکمرانوں میں سب سے زیادہ ظالم گورنر تھا۔ پیلاطس نے بذات خود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو صلیب پر کیلوں سے جڑنے کے ذریعے اس اذیتناک موت کی سزا دی تھی۔ اس وقت صبح سویرے یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ہم نے اسے اس لیے پکڑا کہ یہ دھوکے باز ہے۔ اس نے بیت المقدس میں بھی ہلچل مچا دی۔ اس کی سزا کیا ہو؟ اسے مصلوب کرو۔ میں تو اسے سزائے موت دینے کی کوئی بھی وجہ نہیں پاتا۔ یہ مجرم ہے، اس کو یہ کہتے سنا ہے کہ محصول نہ دو۔ یہ مسیحا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بادشاہ کا بھی۔ بادشاہ؟ کیا تم یہودیوں کے بادشاہ ہو؟ تم خود کہتے ہو۔ وہ جلیل سے تبلیغ کرتا ہوا یہاں بھی آ گیا ہے۔ جلیل سے؟ کیا یہ آدمی جلیلی ہے؟ اس صورت میں تو ہیرودیس ہی فیصلہ کرے، وہ ابھی تک یروشلم میں ہی ہے، اسے وہیں لے جاؤ۔
तुम्हारा क्या दावा है कि तुम कौन हो? वो कौन है जिन्हें तुम साहबी कहते हो? बहुत लोग कहते हैं कि तुम मोइज़े भी कर सकते हो। मेरे लिए मोइज़ा करो। बादशाह सलामत, ये लोगों को खराब कर रहा है और खुद को कहता है बादशाह। ये आदमी बादशाह है? बादशाह सलामत, इसे मारो। इसे प्लातूस के पास भेजो, ये उसका सूबा है। ये आदमी सजाए मौत के लायक नहीं। लिहाजा मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूँ। हुजूर, आप इस ईद के मौके पर तो हमारे लिए एक कैदी आजाद किया करते हैं। आप आजाद कर दें बराबा को। जी हाँ, और इससे जान छुड़ाएं। हाँ, हमारे लिए बराबा को छोड़ दीजिए। इसे मसलूब करो। इसे मसलूब करो। तुम इसे कोड़े मारो। पहला तू सब, तुम किस इंतजार में हो? ये हजरत ईसा अल मसीह है। तुम इन्हें इस कदर अज़ियत क्यों देते हो? कोई नहीं, ये मसीहा है। हज़रत ईसा अल मसीह ने तो कोई गलत काम नहीं किया। मसलूब करो। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि ईसा को मसलूब किया जाए। लिहाजा पिलातुस ने लोगों की फरमाइश के मुताबिक बराबा को छोड़ दिया और हजरत ईसा अल मसीह की मौत का फरमान जारी कर दिया कि आपको मसलूब किया जाए। पीछे हटो, पीछे हटो, तुम पीछे हटो, पीछे हटो। इससे दूर रहो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे, रास्ते से हट जाओ, रास्ता दो, हट जाओ। तुम रास्ते से हटो। जब मैं कहता हूं कि चलो तो फिर आगे बढ़ो। उठो, उठ जाओ। तुम्हारा नाम? शमौन करीनी है जनाब। इस तरफ आओ। रस्सियां काटो। तुम ये सलीब उठाओ। चलो आगे बढ़ो। पीछे
पीछे हटो, उसे छोड़ दो। आगे बढ़ो, रास्ता दो। पीछे पीछे हटो, पीछे हटो। मालिक, हम आपके लिए रोती हैं, ये पी लीजिए। पी लीजिए मालिक। ख़वातीन यरूशलेम, तुम मेरे लिए न रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि अगर मुझ जैसे हरे दरख्त के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तुम्हारे साथ क्यों ना होगा। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आगे बढ़ो, इस तरफ चलो, जल्दी जल्दी। अब तुम चलो चलो, आगे बढ़ो, आगे जल्दी करो, चलो चलो, अब चलो चलो, आगे बढ़ो, जल्दी करो। इसके साथ ही उठ खड़ा हो। सलीबे खड़ी करो। इन्हें जमीन में गाड़ दो। रस्सियां खोलो। मालिक, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। उसने दूसरों को बचाया, अब अपने आप को बचाए। हाँ, अगर तुम ईसा मसीह हो तो अपने आप को बचाओ और सलीब पर से नीचे उतर आओ। अब हमें कोई अपना मौजज़ा दिखा।
हजरत ईसा अल मसीह दो डाकुओं के दरमियान मसलूब हुए और जैसे कि हजारों साल पेशतर एक नबी ने पेशनगोई की थी, ये उसकी तकमील थी। ये कोई आम सी पोशाक तो नहीं है? नहीं, इसे फाड़िए नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या करें। आए, इसमें कुर्रा डालें। मैं जीतूंगा, देखना कैसे नहीं जीतूंगा। मेरी बारी है। अरे खुशकिस्मत, इसका क्या करोगे? एक कतबा हजरत ईसा अल मसीह के सर के ऊपर लटकाया गया, जिस पर लिखा था कि ये यहूदियों का बादशाह है। यहूदियों के बादशाह, अब अपने आप को बचा। क्या तुम मसीह? नहीं, बच्चा हमें और अपने आप को भी। क्या तुम खुदा से नहीं डरते? हम भी तो इसी सजा में मुब्तला हैं। मसीहा बेगुनाह है। हजरत ईसा अल मसीह अपनी बादशाही में आई तो मुझे याद फरमाना। वादा है कि तुम आज ही जन्नत में होगे मेरे साथ। दोपहर का वक्त था कि उस सारे इलाके में तकरीबन 3 बजे तक, यानी 3 घंटे तारीकी छाई रही। बैतुल मक़दिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। परवरदिगार, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब रोमी सूबेदार ने ये माजरा देखा तो उसने ये कहते हुए अल्लाह ताला की तमजीद बयान की कि सुबहान अल्लाह, यकीनन ये कोई नेक शख्स था। यहूदी मजहबी मजलिस का एक नेक रुकन जिसका नाम यूसुफ इरमितियाह था, वो इस कार्रवाई में शरीक नहीं था। उसने पैंतुस पिलातुस से इजाजत चाही कि इससे पहले कि गुरूब आफ्ताब से रोजे इबादत यानी हफ्ते के दिन का आगाज हो,
हजरत ईसा अल मसीह की तदफीन के लिए उनकी लाश मेरे हवाले की जाए। आए हजरत ईसा अल मसीह की लाश की तदफीन करें। मैं मदद करता हूँ, मगर जल्दी करें, हफ्ते के दिन का आगाज होने को है। वो घर गईं और सबत यानी हफ्ते के दिन जैसा कि शरीयत के मुताबिक हुक्म था उन्होंने आराम किया। इतवार सुबह सवेरे वो कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र पर से पत्थर हटा हुआ देखा, लेकिन कब्र में हजरत ईसा अल मसीह की लाश ना पाई। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठे हैं। याद करें कि जब हजरत ईसा अल मसीह जलील में थे, उन्होंने तुमसे क्या फरमाया था कि जरूर है कि वो गुनहगारों के हवाले किया जाए, मसलूब हो और फिर तीसरे दिन जी उठे। सुनो, पत्थर कब्र पर नहीं। हम अंदर दाखिल हुई, लेकिन मालिक की लाश वहां नहीं थी। क्या लाश नहीं है? दो मर्दों का ज़हूर हुआ जो फरिश्ते थे। उनकी नूरानी पोशाक थी। हमसे कहने लगे, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। यकीन करो, हमारा यकीन करो। हमारा यकीन नहीं तो खुद देख लो। कब्र खाली थी और हमारे मालिक जा चुके थे। पतरस, आप तो यकीन करें। हजरत ईसा अल मसीह दो सहाबियों पर जाहिर हुए तो वो निहायत खुशी से दूसरे सहाबा इकराम की तरफ वापस लौटे। यकीनन वो जी उठे हैं, शमून पर भी जाहिर हुए। हम उन्हें उस राह पर भी ना पहचाने। जब उन्होंने रोटी तोड़ी तब पहचाना। अम्मा उसकी राह पर हैरान हो के वहां कैसे गए? अस्सलाम वालेकुम।
تم پریشان کیوں ہو؟ تم اس طرح کے شکوک میں کیوں مبتلا ہو؟ دیکھو میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو، اور دیکھو کہ میں ہی وہ مسیحا ہوں۔ چھو کر دیکھو تو یقین ہوگا۔ روح کے گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ یہ سب وہی باتیں ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کہی تھی۔ میرے بارے میں جتنی بھی باتیں توریت اور زبور شریف میں لکھی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی۔ اور یہ لکھا ہوا ہے، مسیحا کا دکھ اٹھانا لازم ہے، اور تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ اس کے نام سے توبہ اور گناہوں کی معافی کی تبلیغ تمام اقوام میں ہونا ضروری ہے۔ آغاز یروشلم سے ہوگا۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ حسب وعدہ روح پاک تمہارے پاس بھیجوں گا۔ یروشلم میں انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں قوت نہ مل جائے۔ فی امان اللہ، سلامت رہو۔ زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جاؤ اور ساری قوموں میں تبلیغ کرو اور انہیں پروردگار، کلمت اللہ اور روح پاک کے نام سے پاک غسل دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے ان سب پر عمل کریں، اور میں یقیناً ہمیشہ یعنی دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔